Hello everyone, welcome to Bhuvigyan modules. Today in this lecture we are going to discuss our geomorphology NET portion, which will be important for the aspirants who are appearing in GATE, GEM and CSIR NET. And if you want to solve the more numerical question, more than 3000, so you can visit our website. The link I will provide in the description, so you will able to solve much more question based on the similar topics. So let's begin with this. So this is our first question. If the velocity of the streams become twice of its original velocity v, then the ratio of erosional power of stream E1 to the changed E2 will be. Okay, so एक relation होता है. What is that relation? Is that erosional power of stream is directly proportional to square of velocity. ठीक है, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, तो यही रिलेशनशिप हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो पहले जो वेलोसिटी थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओरिजिनल वेलोसिटी हमारी थी v, दैट इज v1, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2v, because it is given that if the velocity of the stream become twice of its original velocity, so if the initial velocity is v, so the final velocity is 2v. So we have to find the ratio of E1 by E2, so that will become v square by 2v square. This is clear. So यहाँ से v square से v square कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर होता है 4, so it will become 1 by 4 which is equal to 0.25. So 0.25 is the answer of this question. ठीक है, इसके अलावा एक और रिलेशनशिप होता है हमारा, that is transporting power of stream is equal to 6th power of velocity. So ये दो रिलेशनशिप आपको याद रखना है कि ओरिजिनल पावर ऑफ स्ट्रीम होता है v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और ट्रांसपोर्टिंग पावर होता है v की पावर 6 के प्रोपोर्शनल. So let's move to the next question. So yeah, let's start our question number 2 here. So this is our question number 2. Let's begin with this. So in the above figure, the resistant rock is dipping downward toward the downstream. Means this is our resistant rock, it is dipping in the downstream direction. Downstream means river के flow के along dip कर रहा है. A sandstone block has a position shown in the figure along the profile of the river such that the position of the sandstone block is this one. ठीक है, position of sandstone block को इस equation से दिया हुआ है हमको, where t is equal to 2 seconds for the magnitude of acceleration of river. The distance between the sandstone block and the rapid will be. So rapid क्या होता है आपका sudden change in आपका रिवर के प्रोफाइल में ना सडन डिप आता है बेड का, तो उसको बोलता है रैपिड. सो यहाँ पे ये रैपिड है हमारा दिस वन. सो हमको सैंडस्टोन ब्लॉक, जो हमारा सैंडस्टोन ब्लॉक है ये, ठीक है, मोदक लड्डू के जैसे रखा हुआ है जो सैंडस्टोन ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट. लेट टेक दिस एज एस. ठीक है, और इसके अलावा हमको एक ये इक्वेशन दी हुई है सैंडस्टोन ब्लॉक की पोजीशन की. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. पोजीशन of sandstone block, that is x, is given to us as 3 plus 2t plus 8 square, 8t square ना. सो पोजीशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम? वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt. तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 16t. सो ये हमारे पास वेलोसिटी निकल के आ गया. अब इसमें जो वैल्यू हमारी 2 की है, ये वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 16 इंटू 2, डेट इज कम आउट टू बी 34 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1. अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा क्या निकल के आता है उससे एक्सेलरेशन. तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, डेट इज डी बाई डी टी ऑफ 2 प्लस 16t, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0 प्लस 16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ठीक है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द सैंडस्टोन ब्लॉक एंड रैपिड. सो हमारा एक रिलेशन होता है दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. इस पे बेस्ड आपका गेट और जैम पे क्वेश्चन काफी बार पूछ चुका है. ठीक है,
गेट एंड जेम पे काफ़ी बार इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आया है। सो v हमको पता है कितना हो गया 34 का स्क्वायर, जो कि फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज गिवन टू अस एज 16 एंड डिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट। सो यहाँ से हम इसको सॉल्व करके यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3rd। So let's begin with this. The above figure represent the cross section profile of a meandering river. ठीक है, जो फिगर हमको गिवन है क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल meandering river का, such that the depth of the water from the local datum as shown in figure is 100 meter. So ये जो डेप्थ है हमारी, this one, जो हमको गिवन है कितनी 100 meters. The volume of the water is 1500 meter cube and the density of the water is this one. So if the velocity of the water is 500 meter square per second, then the centrifugal force of the water body is how much? 10 to the power 10 newtons. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, सो पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन इज, first thing given is our this one, radius. So radius is given to us as 100 meters. Volume of water capital V is given to us as 1500 meter cube. Density of water is given to us as 1027 kg per meter cube, and the velocity of water small v is 500 meters. So these are our given conditions. अब हमको फॉर्मूले में क्या पूछा है, यहाँ पे हमारे पास v है, दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में हमारे पास वेलोसिटी है, हमारे पास रेडियस है, हमको मास निकालना है। तो मास हम डेंसिटी और वॉल्यूम का यूज करके निकाल सकते हैं। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज गिवन टू एज 1027 is equal to mass upon volume is given to us 1500. तो यहाँ से हमारा मास निकल के आ जाएगा 1027 into 1500। ठीक है, so let's calculate this one. या सो मैंने रिकॉर्डिंग पॉज की थी और फिर कैलकुलेटर का यूज करके मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो ये आ गया 1540500 kg। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1540500 इंटू वेलोसिटी दैट इज 500 का स्क्वायर बाय 100। सो ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए। सो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 15405 into 2500. So let's calculate this thing. 15405 into 2500, तो हमारे पास आ गया 3.85 into 10 to the power 7। ठीक है, सो मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया है, लेट मी सी। तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है ना बच्चों, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका 25 इंटू 10 टू द पावर 4 होगा ना ये। सो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 9। सो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0.38 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन। तो कैलकुलेशन मिस्टेक का ध्यान रखना। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 0.38। So let's move to the next question. So this is our question number 4th. I hope you all are enjoying this video. So let's start this one. A stream is transporting a sediment with a velocity of small v, and if the velocity becomes 3 times of the initial velocity, then the transporting power of the stream is proportional to.
पहले क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने, ट्रांसपोर्टिंग पावर ऑफ स्ट्रीम किसके बराबर होता है हमारा, ट्रांसपोर्टिंग पावर ऑफ स्ट्रीम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 6th पावर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द वाटर। सो इनिशियल वेलोसिटी हमारी v थी, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, 3 टाइम्स ऑफ v। 3 टाइम्स ऑफ v हो जाएगा, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग पावर जो है हमारा चेंज कितना हो जाएगा, 3v की पावर 6। So this will become how much, 3 की पावर 6 into v की पावर 6. So this will come out to be 3 की पावर 6 is your 729 v की पावर 6. So this is the answer of this question, 729 v की पावर 6. So let's move to the next question. So this is our question number 5 of the numerical series. So let's start this one. The width of the rectangular channel is 10 meters and the mean depth is 7 meters. The weighted parameter of the channel is equal to. So इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर चैनल है, ठीक है, ऐसा, और इसमें वाटर है, और वाटर का कलर क्या होता है, ब्लू, है ना। हर वीडियो में बताता हूँ मैं, वाटर का कलर ब्लू होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में भी आप लोग कलर पेन लेके चले आना और ब्लू कलर से वाटर को ऐसे बना देना। हियर द विड्थ ऑफ द वाटर चैनल इज 10 मीटर्स, ठीक है, 10 मीटर्स, एंड मीन डेप्थ इज 7 मीटर्स, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट द वेटेड पैरामीटर, ठीक है। वेटेड पैरामीटर वो पैरामीटर होता है जहाँ पे आपका वाटर जो है सरफेस को गीला कर रहा है, नाम से ही पता चल रहा है वेटेड। सो ये अगर 7 है तो वेटेड पैरामीटर में क्या क्या काउंट होगा आपका, एक तो दिस विल बी काउंटेड, वाटर इतना से इतना सरफेस गीला कर रहा है यहाँ पे, दिस वन विल आल्सो बी काउंटेड, एंड यहाँ से यहाँ तक का भी। सो इफ दिस डिस्टेंस इज 7, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 7, एंड दिस विल आल्सो बिकम 7। सो वेटेड पैरामीटर कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन वेटेड पैरामीटर is equal to 7 plus 10 plus 7. So this will come out to be 17 plus 7, that is 24 meters. So this is the answer of our question. Let's move to the question number 6. So yes, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपकी स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन जो है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आप गेट पे काफ़ी बार देख चुके हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे फिगर गिवन है, और इस फिगर में we have to find out the maximum bifurcation ratio of the given network, ठीक है। maximum bifurcation ratio क्या होगा हमारा गिवन नेटवर्क का। so let's start this one. so पहली चीज होता है आपका, let me see once, yeah, so bifurcation ratio, बाइफरकेशन रेशो का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्ट्रीम्स बाय नंबर ऑफ स्ट्रीम ऑफ नेक्स्ट ऑर्डर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम नंबर ऑफ स्ट्रीम फर्स्ट का निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाइफरकेशन रेशो फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो n1 बाय नंबर ऑफ स्ट्रीम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बाय नंबर ऑफ स्ट्रीम ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इस फॉर्मूले का मतलब ये हो गया। सो हमको मैक्सिमम बाइफरकेशन रेशो निकालना है, तो पहले हम R1 निकालेंगे फर्स्ट स्ट्रीम के लिए, तो 1 कितने हम काउंट कर लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम काउंट कर लेते हैं, सो 1 2 3 4, ठीक है, 4 है, तो 10/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम के लिए निकाल लेते हैं, तो सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर तो हम काउंट कर चुके हैं 4 है, अपॉन नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, तो थर्ड ऑर्डर कितनी स्ट्रीम्स हमारे पास, एक, और ये वही है ना, ये सेम ही स्ट्रीम है तो इसको एक ही काउंट करेंगे, और एक ये है, ठीक है। तो ये कितने हमारे पास 2 ही हैं, 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2। सिमिलरली आप थर्ड ऑर्डर के लिए भी काउंट कर लेना। सो मैक्सिमम कितना आएगा हमारे पास 2.5। सो 2.5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स स्टार्ट दिस वन। द नंबर ऑफ स्ट्रीम्स
segment of the second order string is 343. ठीक है, and the bifurcation ratio is equal to 7. The highest order of the string present in the basin will be. So highest order of the basin कितनी present होगी इसमें निकालना है हमको. So we know that कि number of string जो है वो इक्वल होता है आपका bifurcation ratio k to the power ये. ठीक है, अब ये होता क्या है, इसमें आपका म्यू जो है ये नंबर ऑफ स्ट्रीम्स जो है वो बताता है. ठीक है, आर है हमारा बाइफर्केशन रेशियो, के हमारा है मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ द स्ट्रीम. तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे. ठीक है, गिवन क्या क्या हमको यहाँ पे गिवन इज सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम n2 की वैल्यू हमको गिवन है 343. ठीक है, बाइफर्केशन रेशियो हमको गिवन है कितना 7. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के हियर. सो पुट कर देते हैं. तो ये यहाँ पे आ जाएगा n2 इज इक्वल टू 7 टू द पावर k माइनस 2. n2 की वैल्यू कितनी गिवन है हमको यहाँ पे 343. सो 343 इज इक्वल टू 7 k माइनस 2. 343 को वी कैन राइट एज 7 का क्यूब इज इक्वल टू 7 k माइनस 2. तो यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर भी हमारी सेम हो जाएंगी. ठीक है, तो यहाँ पे 2 को यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे तो k की वैल्यू विल कम आउट टू बी 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5. सो 5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो ये जो फॉर्मूला है इसको आप याद रखना. दिस क्लियर, दिस फॉर्मूला इज लिटिल बिट इम्पोर्टेंट है ना, ये फॉर्मूला हमारा थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है तो इसको आप देख लेना. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. या सो दिस क्वेश्चन नंबर 8 ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पे बेस्ड वाले फॉर्मूले पे ही है. सो यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, यू कैन पॉज द रिकॉर्डिंग और खुद से ट्राई करना. ठीक है, सो मैं अभी इसको डिस्कस कर लेता हूँ. So in this question the number of streams of the fifth order is 2197 and the highest order of the stream present in the basin is 8. The bifurcation ratio is equal to. So हमको given क्या क्या है वो लिख लेते हैं पहले. पहला तो हमको given है n5 की वैल्यू that is 2197. ठीक है, highest of the order of the stream means k की वैल्यू हमको given है 8. We have to find the value of r. सो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एन यू इज इक्वल टू आर के माइनस यू. ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था वो यहाँ पे भी यूज होगा. सो दिस विल बिकम 2197 इज इक्वल टू बाइफर्केशन रेशियो टू द पावर 8 माइनस 5. सो ये कितना आ जाएगा 2197 आर टू द पावर 3. तो इसको हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2197 और क्यूब रूट ऑफ 2197 क्या होता है आपका 13. सो 13 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो डन. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. या सो क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं हम अब. ठीक है, सो इफ द बेसिन is of fifth order and the bifurcation ratio is equal to 4, then the total number of stream present in the basin. अब यहाँ पे हमको पूछा है टोटल नंबर ऑफ द स्ट्रीम बेसिन में कितनी प्रेजेंट होंगी. सो जो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का सेम क्वेश्चन आपको CSI और नेट पे ठीक है 2 टाइम्स आ चुका है. तो इस चीज को ध्यान रखना आप लोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम्स किसी भी बेसिन का निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा आर न्यू माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. न्यू क्या है मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, नंबर ऑफ स्ट्रीम है ना, आर है आपका बाइफर्केशन रेशियो है. So what are the given values here? Let's write the given. So हमारा फिफ्थ ऑर्डर की स्ट्रीम है तो मीन्स u की वैल्यू 5 हो गई. बाइफर्केशन रेशियो इज गिवन टू अस एज 4. सो पुट कर देते हैं यहाँ पे. सो कितना जाएगा 4 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन
4 माइनस 1. So 4 to the power 5 होता है 1024 minus 1 by 3. So this will come out to be 1023 by 3. ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 3 1 3 times and this will power carry and 3 4 last one is 1. So 341 is the answer of this question. So this question is also done. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेना. ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम्स की वैल्यू क्या होती है. आई होप दिस इज क्लियर टू द स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. सो दिस इज अवर फाइनल क्वेश्चन. और अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो आप इस टाइप के और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है तो आप मॉड्यूल्स ज्वाइन कर सकते हैं. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. सो हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज का. In this question, the basin is in shape of hemisphere with a radius of 7 kilometers. If the total length of the basin is 500 kilometers, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है. ठीक है, ये मिस टाइपिंग हो गया है मेरे से. मिस प्रिंट होता है ना जैसे, वैसे मिस टाइपिंग हो गया है यहाँ पे, तो ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो काट दिया. नाउ द ड्रेनेज डेंसिटी इज इक्वल टू, ड्रेनेज डेंसिटी हमको निकालना है. पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या क्या हमारे पास. Given to us as radius of the basin that is 7 kilometers. इसके अलावा total length of stream is given to us as 500 kilometers. ठीक है, इसके अलावा जो हमारा बेसिन का शेप है वो हेमिस्फीयर है. तो हम जो एरिया है, मतलब वॉल्यूम इस केस में एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर. आप पुट कर देंगे 3 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, तो ये 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा. इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है. 3 इंटू 22 इंटू 7, तो ये हमारा आएगा 462 किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है, हमारे पास बेसिन का एरिया भी आ गया. अब जो हमारा ड्रेनेज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ड्रेनेज डेंसिटी. अब ड्रेनेज डेंसिटी पे तो क्वेश्चन मतलब इन्फानाइट टाइम्स आ चुका है. ठीक है, आपका गेट में भी और जेम में भी. तो ड्रेनेज डेंसिटी होता है आपका टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रीम अपॉन एरिया ऑफ बेसिन. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया ड्रेनेज डेंसिटी का. नाउ इसको पुट कर देंगे तो हमारी ड्रेनेज डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज total length of stream given to us as 500 divided by 462. So इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. 500 divided by 462, it will come out to be 1.08 किलोमीटर इनवर्स. ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर स्क्वायर पे था और ये किलोमीटर पे था, तो किलोमीटर इनवर्स आ जाएगा. सो ड्रेनेज डेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला भी जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लेना. सो हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए. आपको और भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप मॉड्यूल ज्वाइन कर लेना. और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. एंड मॉड्यूल्स का जो फुल कोर्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है. थैंक यू वेरी मच.